Good morning, morning. Good morning. Good morning. Good morning. So I was wondering, Saritaji, I thought that maybe, as I was mentioning yesterday, in that note, I was mentioning that to my mind, I was just thinking about, the heart of, Krishnaji's teaching. In a sense, actually, comes down to this issue of conditioning, in a way, actually. So I thought, we will explore, how that is so, how he gives so much importance to this issue of looking into our own conditioning. So that's how we, selected the discussion for today. नहीं So ये I तो thought आपका ना बहुत अच्छा है, ये आप जो टॉपिक इस तरीके से एक एक चूज करते हैं ना, ये बहुत बढ़िया है। उसके फिर वो फोकस्ड हो जाता है इंसान, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, Yes. Okay. Yes. So what I thought, Saritaji, we'll just give a reading of the text which I had said. Maybe that will be 10 minutes or so, and then we can talk about it, actually. Okay, no problem. Okay. I just start. So this is taken from a talk in Sanin in 1968. So quite some time ago. In fact, many years before he passed away also. If we may, we'll go on talking over together the subject which we considered last time that when we met here. It seems to me it is so important to understand and be in a state in which the mind is completely religious. Because such a mind, not abstractly or theoretically, can solve all our problems. And a religious mind is not burdened with any of the idiotic ideologies or dogmas or assumptions, but it is concerned with facts, with what is, and then going beyond it. And as we were saying the other day that we met here, all our consciousness is conditioned through education, through various inherited acquired states and behavior, through various contradictions, and the conflict of the opposites. That is the consciousness of which we are. I think it is fairly obvious that this conditioned state of mind can only be discovered by each one of us by looking at ourselves objectively. And it's one of the most difficult things, it seems to me, to look at ourselves, to see actually as we are, without any theories, without any despair or hope, without any demand or opinion, just to look at ourselves. And apparently that's one of the most difficult things to do for most of us. Unless we do this, I do not see how one can go beyond this limited, narrow circle in which we live. And I wonder how, in what manner it is possible to bring about this state of inward awareness, to see actually what is taking place in ourselves without any bias, without any neurotic assumptions, but to be aware choicelessly what is actually going on. I do not know if you have ever tried it, not psychoanalytically, to examine every thought, every feeling, trace out the source of that thought or that feeling, the cause, the motive, the examination of behavior, the various layers, if one may use that word, of the mind of our consciousness. I don't mean that way that would take too long, that would lead us nowhere. The analytical process implies an analyzer. And when the analyzer himself or herself is conditioned, whatever he or she examines will also be or depend upon the conditioned state. So the whole analytical process is obviously very limited. So there must be a way of looking at ourselves totally without going through all this complication of analysis, of examination, introspective analysis, and so on and so on. Is there a way, a regard, a look that will reveal the whole content of our conditioning? I do not know if you have asked that question of yourselves, and if you have, I wonder how you would answer that question. You understand the problem, do you? Human beings are conditioned. Their whole behavior pattern, their outlook, their activity, their aggressiveness, their contradictory states of mind, hate and love, pleasure and pain, the despair and hope, this constant battle is the whole field of our consciousness. The very invention of God's beliefs, fears, are the outcome of this conditioned mind.
our nationalities, our divisions of people, races, and so on, is the result of our education, of our society which we have built. And so there we are. That is the field of our consciousness. And that consciousness is obviously conditioned. The causes of that conditioning are fairly obvious to society and its influence on the individual who has created that society, and the various animal inherited instincts, compulsions, aggressions, and so on. How is one to be free completely of this so that there is no conflict of any kind? Because as we said the other day, conflict, struggle, battle is a waste of energy. And our whole life is spent in this. One desire opposing another desire, one demand, urge, instinct contradicted by another, and that's our life. And one asks oneself, is it possible to completely step out of it? And how is this to be done, if this is at all possible? We were saying that systems, philosophies, religions have not freed man, and freedom within the prison of consciousness is no freedom at all. It's like a prisoner living within four walls and saying he is free. He is not free. He can walk about in the yard, but freedom is something entirely different. It lies totally outside the prison. And seeing this whole complex human relationship, this complex conditioning, the battle, the struggle, the fear of death, the loneliness, the despair, the lack of love, the brutality, the aggressiveness of which we are, is it possible to go completely beyond all this? And we said also that no outside agency can help us. The outside agency is another invention of a conditioned mind, another ideology of a mind that cannot find a way out, and therefore it posits a belief. Now, when you brush aside all that, then we are left with this fact, the mind, that a mind is wholly conditioned, both the conscious mind as well as the unconscious, the deeper layers. If one is aware of all this, what actually takes place? If I am aware that whatever I do, whatever movement of thought, whatever effort I make is within the limitation of that conditioning, then what actually takes place? You understand my question? I am aware how my mind, the very brain cells themselves, are heavily loaded by the past memories, experience, knowledge, tradition, systems of behavior, which one has accepted as war and peace, aggression, killing each other, destroying by a word, by gesture, by an act, separating ourselves. Now, how am I to be aware of this? Am I aware of it intellectually? Please do follow this right through with me, with the speaker. Don't just listen or merely hear, but actually do it. How am I aware of this fact? So I have to ask myself, what do I mean by awareness? How do I look at it? Obviously, when I look at it, I either condemn it, justify it, or accept the inevitability of it. Please do this. Are we doing it together? That is, are we taking the voyage together? Are you participating in what is being said? If you are not, there is no communication between yourself and the speaker, and we cannot go any further if there is no communication. And if we could do it together, then it is a discovery, not by the individual, a discovery, an understanding, a perception that is a total human perception, not a limited perception. So what do we mean by an awareness? I'm aware that I am conditioned, that's a fact. I'm aware of it, I'm conscious of it, I know it. What does that mean? Is there a separation between this awareness and the thing of which it is aware? That's where we left off when we last met on Thursday. Am I aware of my conditioning as an outsider looking at it? One knows one is aggressive in word, in feeling, in act. Do you know it is as a knowledge, or do you communicate with that fact, not as an outsider, but a communion established between the entity that is aware and the thing he is aware of? You understand? I think it is very important to understand this. When I say I know I am conditioned, the word know is a very complex word. You have looked at it before, then you have learned something about it, and you say I know. But when you say I know, you have already accumulated knowledge about it. And with that knowledge you look. But the thing may have changed in the meantime and does change. I don't know if you are following this. Therefore, to say I know is the most dangerous thing.
To say I know you, which is absurd. I know my wife, my husband, my children, my politician. My God, that's the last thing. When you say I know, you mean you knew your husband or your wife or your friend 2 or 3 days ago. But in the meantime, that friend or husband or wife has probably undergone a change. So to say I know is wrong, if I may use that word. So knowledge prevents you from looking, right? And can I look without the previous experience, without the knowledge, so that I look with freshness, with newness? Life is a series of experiences, conscious or unconscious. The experiences, the various forms of influences, ideas, propaganda, all are pouring in. And every experience leaves a mark. And with these various hurts, marks, memories, knowledge, I look. So my look is always spotted, never clear. So can I look at myself with eyes that have never been touched by experience? Do please follow this and do it, and you'll see something. If I look at myself with the eyes of experience, with the eyes that have looked at so many things, that have been through such tragedies, such hopes, such despairs and sorrows, then those eyes can never see clearly. And can the mind be free of all the past to look? So can the mind be aware of this conditioning, to look at it without distortion, without any bias? So that is the problem, right? And is it possible to look at anything, the tree, the cloud, the flower, the child, the face of a woman or a man, as though you're looking for the first time? That's really the central issue. That is real freedom, to look. After all, freedom means to be free of the whole depth of the past being the culture in which we have been brought up, the social economic influences, the peculiar tendency of each one of us, the impulses, the religious dogmas, beliefs, all of that is the past. And with those eyes, we are trying to look at ourselves, and ourselves are the past. I don't know if you're meeting on this. Therefore, freedom means the freedom from, wait a minute, there are two types of freedom, aren't there really? The freedom from something, right? I am free from anger, let's suppose. That is the freedom from something, is a reaction. And obviously that's not freedom, right? To be free from one's nationality means absolutely nothing. And obviously a very intelligent man throughout the world is free from that particular poison. That does not constitute freedom at all. He may be unconscious that he is very aggressive, brutal, and free, and freedom from brutality, violence, aggression is only part of this whole structure. And there is a different kind of freedom. I wonder what it is. You know, the danger of explanation is that we like to be told what it is, and we hope to achieve it by an effort. Freedom is a state of mind where there is no effort at all. Therefore, freedom is love. Because if you say I must learn to love, practice love, I hate people, but I am going to struggle, attempt to love, then it is not love. So freedom is a state of mind in which love is. And love is not the opposite of hate or jealousy or aggression. And when we are dealing with opposites and trying to be free from one and achieve the other has its root in its own opposite. So through conflict, freedom cannot possibly be understood. So we will come back to this question: what is it to be aware? Is there an awareness of that tree, or that cloud, or the green sparkling grass in the early morning? Is there an awareness of it without any choice, without any interference of thought or knowledge, which divides? We were saying the other day when we met here, do look at a tree or a cloud or whatever it is without space. Did you do it? To look at your wife or your husband or your girlfriend or boyfriend, to look without the image. Have you tried it? See what the implications of it are and see whether you can be free from these implications so that you can look. I think that this is very important to understand. I think this is the key to the whole thing. If there is no separation between the observer and the thing observed, there is no conflict, and therefore there is immediate action. I am aware that I am angry, and the observer sees that he is angry, something apart from himself, outside of himself. Do this with me. Then when there is a division between the observer and the observed, then the observer says, I must get rid of it, I must suppress it, I must understand it,
I must look at the cause of it, and so on and so on and so on. In that, there is conflict. There is a state of disturbance, control, suppression, yielding to it, rationalizing it, justifying it, and so on, which are all a waste of energy because conflict is involved. And when the observer realizes that he himself is the thing observed, he is angry, not he and anger are two separate things, right? Can we go on? Then there is no waste of energy. Then what actually takes place? What happens then? When I say I am angry, that state you all know, that is the system which we have accepted for centuries. If you don't accept that way of behavior, that way of thinking and so on, then you will realize that you are not separate from anger. You are anger and you are aware of it. Then there is no division. Then what takes place? Is the picture getting clear? Will you tell me if the thing is clear? Then what takes place? When there is no struggle, no effort, no contradiction, no battle, there is only one thing, that is what actually is, right? And what actually is myself, is the observer who thought he was different from the observed. And there is only the fact of anger, jealousy, or whatever, which means all the movement of contradictory thought has come to an end. You are following this? Therefore, there is only a look, a perception, a seeing in which there is no division, no contradiction. Therefore, a new state of energy comes into being. And it is this state of energy that is going to dispel that fact altogether. It's up to you. You know, as you were saying the other day, we need a great deal of energy to look at a tree without space. Without this division between the seer and the seen, you need great energy of attention. And also you need a sense of freedom. Attention or freedom go together. That is love and the quality of attention in which the observer is not. Is it time? Are you getting tired? So how do we proceed from there? How do we communicate with each other when you are merely hearing and not doing? Because you see, we can talk endlessly, explain by the hour all that has very little value. What has significance is this quality of freedom in which there is love. And that freedom of attention, I wonder if you are getting all this. I've talked for about 45 minutes. What you have got out of it. Could you tell me, could we talk about it? What actually have you learned? Not memorized, not gathered a few ideas or explanations, but actually what have you in your hand now after hearing for about 50 minutes or so? Could we discuss that? So that was just a brief reading, Sarita ji and everybody, about that text, which in fact is longer. It goes into more questions and answers and all that. And so, I found it very interesting. Maybe we can share your thoughts on it. But to my mind, I think somebody actually gave a very nice description of conditioning also. Where, there's a person called Michael Mendiza. He used to come to our talks sometimes in the American, and we used to invite him for some talks on Zoom. So he coined something very interesting. He said, conditioning is karma. So I found it very interesting because then I went back to him and I asked him, Michael, can you explain that a little bit? So he said that, whatever we accumulate, and that becomes the consciousness from which we act. And unless we are free from it, actually, we ourselves are blocking ourselves from that which we call the sacred. So it's, that's scientifically not possible because we want both the things to go together. We want the conditioning also and we want the sacred also. So I just thought I'd pause there and then maybe invite thoughts and all from others who might want to share their thoughts. Good morning. So anybody, Sarita, Harsha, maybe anybody to share anything that you wish. नहीं, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से. तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले से. ये अनामिका बोल पाओगी? नहीं सरिता जी, मैं बाद में बोल. अच्छा ठीक है. तो दीपा आप बोल पाओगी? दीपा? हाँ जी. हाँ जी. अच्छा, ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है. एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इनका, जो कि आई ओपनिंग पर्सपेक्टिव है हर चीज में.
मतलब जैसे कि मेरे को उसमें से ये पॉइंट, वैसे तो सारे कुछ अच्छे हैं, मगर ये पॉइंट अच्छा है कि वही जो भी कंडीशनिंग ऑफ द माइंड है ना, हमारी भी कंडीशनिंग है, मगर भी जैसे आजकल सब जगह चल रहा है कि काफी मतलब वैर भाव बहुत है, और मतलब कलेश सब जगह बहुत है। तो तो ये इसलिए क्योंकि संस्कार ऐसे है ना, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड इतनी ज्यादा है, और सालों जन्मों का है, तो वो चीज मतलब मुझे, और बाकी और भी चीजें हैं, बाकी आप लोग बताओ बस। हाँ नहीं ठीक है, हर्षा जी आप बताइए। ये जो उन्होंने बात किया ना अभी, तो हमने जब उनको पास जाते थे ना, तो मैं उनको बोलती थी कि अब उनको फ्रूट देने में जाते थी हर रोज कृष्ण जी को, तो मैंने वो बोला आपका स्माइल बहुत अच्छा है, पर जब मैं घर जाती हूँ तो स्माइल डिसअपियर हो जाता है, वो कुछ स्माइल वाइल नहीं रहता है, सब डोमेस्टिक टेंशन बहुत रहते हैं। तो उसने कहा कि आपका हस्बैंड के साथ मेरे को बात करना है। तो हम लोग मेरे देवर देरानी, मेरे ननन लोग, मेरे हस्बैंड सब आए, और उनके साथ एक डायलॉग हुआ। तो उसने हंसते हंसते कहा कि आपकी वाइफ बोलती है कि स्माइल घर में जाती है तो चली जाती है। तो बोलते कि सर क्यों होता है ऐसा, रिलेशनशिप में टेंशन क्यों आता है ऐसा, मैंने क्यों हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया यही कि भाई हम लोग का फ्रेशनेस ऑफ रिलेशनशिप नहीं रहता है। जो हम लोग 10 साल पहले शादी किए थे तब अलग वो था, माहौल था, हम लोग तभी रोमांटिक स्टेट में थे, ये था, बर्डन्स नहीं आए थे। पर जैसे टाइम प्रोग्रेसेस, सो इन द प्रोसेस ऑफ टाइम आपका सब चीज बदलता है, पर वो बदलने की स्थिति के साथ हम लोग बहते नहीं है। तो हम लोग जो पहले के इमेज में अटके हुए थे कि पहले तो इतना अपना पूछा करता था, अभी कुछ नहीं करता है, अभी डांटते रहता है, अभी थोड़ा बात में गुस्सा हो जाता है, तो वो सब मैंने उनको कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो रिलेशनशिप हो गया है ना, वो एक बार्टर हो गया है, ट्रेडिंग हो गया है, मुझे ये चाहिए और तुमको ये चाहिए। तो जब वो ट्रेडिंग सही होता है तो रिलेशनशिप अच्छा होता है, जब ट्रेडिंग नहीं सही होता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो यही जो इमेज जो होती है हम लोग जो एक दूसरे के साथ जो कैरी करते हैं ना, कि कल उसने हमको डांटा था तो मेरा गुस्सा 4 दिन तक चलेगा, तो वो मुझे समझ में आ गया तभी। तो मैंने काफी उसमें भी गौर किया कि भाई अपने को जैसे स्थिति आती है उसमें हास्य में कैसे रहना। तो यू हैव टू हैव अ फ्रेश आउटलुक ऑन लाइफ एवरी सिंगल डे। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, यू कैन नॉट जज द प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंट्स। ऐसा मुझे थोड़ा समझ में आया अभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसे दिन के हिसाब से भी नहीं कहा जाइए, एवरी मोमेंट जो है आपको फ्रेश रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशनिंग ये हो जाता है कि जैसे एक दिन की भी जो कंडीशनिंग हो जाती है वो उससे भी हम अभी नाव वाली जो कहते हैं ना, लिव इन नाव, तो वो सिचुएशन हम उसको भूल जाते हैं बार बार। तो फ्रेश मोमेंट फ्रेश तरीके से डील करना पड़ेगा, और उसमें इटर्नल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। पहले इटर्नल रिलेशनशिप है हमारी सबकी, फिर उसके साथ जो टाइम के अंदर जो आती है, टाइम के बियॉन्ड मैं हूँ, और टाइम के अंदर जो रिलेशनशिप होगी तब हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यदि हम इटर्नल रिलेशनशिप को जान पाएँ पहले। तो वो मेरे ख्याल से ऐसे लगता है। और उसमें मतलब एक दिन की भी एक मोमेंट पहले की भी घटना जो है वो भी पास्ट की घटना कहलाएगी। तो उस मोमेंट में भी वो वाली इमेज और वो सब चीज़ों को फिर बिल्कुल जीरो करके, और फिर नेक्स्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल फ्रेश फिर दोबारा तैयार हो, तो वो इस तरीके से चलेगा। तो ये स्थिति तो चलेगी सारा जो माइंड की, लेकिन माइंड कितना एक्टिवली जो कर सकेगा ना ऑपरेट इस बॉडी को, तो वो तभी कर पाएगा जब हम बिल्कुल सीयर वाली जो पोजीशन है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी, तब हो पाता है ये पॉसिबल मेरे हिसाब से। एक्सपीरियंस माइंड को हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ में अटके यदि रह गया हम, तो जो एक्सपीरियंसर है, तो एक्सपीरियंस तो माइंड को होता है, एक्सपीरियंसर माइंड है एक्चुअली। और वो जो माइंड है एक्सपीरियंस के साथ में बार बार हर मोमेंट को एक्सपीरियंस पूरा करता रहे, और सीयर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सीयर अपने देखने में स्थित रहे,
तो वो अवस्था जब रहती है तो तब हम दोनों तरीके से, जैसे एक्सपीरियंस को भी हम अनुभव करते हुए में भी, और पूरा पार्टिसिपेशन हमारा 100% रहता है उसमें। अब मतलब जो ये मैं बता पा रही हूँ, ये उसमें क्लैरिटी शायद अभी भी नहीं होगी, लेकिन वैसी स्थिति में रहना सबसे बढ़िया है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ में मैं जुड़ती नहीं हूँ। उसके बाद भी एक छोटी सी, आई रिमेम्बर दिस स्टोरी, एक छोटी कहानी एक्चुअली, इट्स अ रियल स्टोरी, बिकॉज हमारे एक मित्र हैं जो काफी दिनों से आल्सो, ही इज आल्सो वेरी मच दिस थिंग, बट वेरी वेरी इंटेंस इन हिज सर्च, बहुत इंटेंस इन हिज इंक्वायरी। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि बोला कि वो जस्ट वेरी ऑनेस्टली, वो अपनी बचपन से वो शेयर कर रहे थे कि जब हम बचपन में कोई ऐसे संस्कार कहीं नहीं मिले तो हमने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना एनर्जी वेस्ट किया इन ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ऑफ एब्यूज, सिगरेट पीना, सेक्स वगैरह, ये सब चीज में। और यही सोचता रहा कि मैंने, दिस इज बेसिकली इट, दिस इज लाइफ एक्चुअली। और बोला कि अब वो भी एक्चुअली हिज एज इज आल्सो लाइक मी ओनली। तो उसने बोला कि देखिए, अब इज आल्सो 75+, तो उसने कहा देखिए अभी ऐसी स्थिति में हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट मैं उसको, बट ही इज रिफरिंग टू द अदर, द सेक्रेड एज, उसको मैं उसको बहुत करीब पाता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि इतना जमा हो गया है कूड़ा, मैंने सो मच इज देयर व्हिच वी कॉल कंडीशनिंग और व्हाटएवर। इट इज लाइक ही सेड, ये तो ऐसा हो गया कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था। अभी कलकत्ता से जाना था दिल्ली, मैं चेन्नई का ट्रेन में बैठ गया। अब तो कोई उपाय नहीं है, आपको चेन्नई से अभी फिर आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा टू गो बैक टू। सो उसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा मेरे लिए, उसने शेयर किया। वो बोला आई वॉज ऑन द रॉन्ग ट्रेन एक्चुअली। सो आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इतना ये न्यूट्रल ग्राउंड है, माने इतना न्यूट्रल ग्राउंड है कि अगर हम दूसरी चीजें खोज रहे हैं तो हमको तो मिल ही जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट अगर हम वो खोज रहे हैं तो फिर ये खत्म नहीं होने से नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बात हमको लगा कि एक्चुअली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, that the two things cannot go together. That is माने हमारे complications, my own peculiar biases, opinions, that and the total truth, they cannot coexist. तो इतना अच्छा लगा एक्चुअली, आई फाउंड दैट स्टोरी सो नाइस एंड आई एक्चुअली यूज दैट स्टोरी। हमारा एक छोटा सा ब्लॉग है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का, उसमें मैंने शेयर किया कि एनोनिमसली शेयर किया। उसने बोला एनोनिमसली रखना कि बट दिस इज समथिंग ही फेल्ट एक्चुअली, व्हिच इज इन अ वे इट सम्स इट ऑल अप। बिकॉज अगर हम खुद उस पर एक्ट नहीं करेंगे, एक्ट माने नॉट इन द सेंस दैट वो मैं पर एक्ट करने जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम कि मुझे इसको ठीक करना है। दैट मीन्स द ईगो इज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बिकॉज ऑफ इट एक्चुअली। बट अगर किसी सूरत से अगर एक तरह का इम्पार्शियल, वेरी ऑब्जेक्टिव सीइंग हो जाए, तब वो चीज डिसॉल्व हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि आपको दिख जाता है। वो दिखना ही एक्शन है, वही कृष्णा जी बोलते थे, द सीइंग इज द एक्शन। सो दे जस्ट वांटेड टू शेयर दैट स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नहीं ठीक है। चलिए मोना, आप बोलोगी? अभी इतनी थोड़ा बाद में। अच्छा ठीक है। अनामिका जी, आप बोल पाएंगी आप? हाँ जी सरिता जी। कुछ नहीं, वही मतलब हमारा तो मतलब मुझे इसमें ऐसे ही लग रहा है कि जो मन है उस पे परते पे परत चढ़ती जा रही है और हम उसमें ही कहीं ना कहीं मतलब विरोधाभास भी हो रहा है और उस बर्डन में ही फंसते जा रहे हैं। तो बेटर है कि जो भी हो रहा है उसको होने दे, और जो बीत गया सो बीत गया, फिर जो नया क्षण है फिर उसमें नया स्टार्ट करे। बिल्कुल ठीक बस इतना ही होना है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए रिपेंट भी क्या करना? हाँ सही है, उसके लिए रिपेंट भी कुछ मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि उसके लिए तो फिर आप अपनी ऊर्जा ही वेस्ट कर रहे हो ना। हाँ, उसके लिए वेस्टेज ही है, क्योंकि जब अब आपकी आंखें खुल जाती है, अवेयरनेस में आप आगे आ ही गए, तो अवेयरनेस ही उस चीज का नाम है जो बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ है। हाँ, तो मतलब जो अगर हम मतलब पास्ट में अगर हम उलझे रहेंगे तो ना तो हम टोटल जो नया आ रहा है उसको एंजॉय कर पाएंगे, और जो अभी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वर्तमान तो हम उसमें बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे। नहीं अनामिका जी से एक बात याद आया
Very interesting because he used to call Krishna ji and all the other seers also. They used to say our problem is कि वो जो नेमलेस है, बिल्कुल अननेम्ड, यू कैन नॉट गिव ए नेम टू इट ऑल्सो. हम जानते ही नहीं है कि हम क्या, मैंने उसके बारे में कुछ भी. तो व्हाट वी आर गोइंग अराउंड इन ए सर्कल लाइक ए प्रिजन एक्चुअली. And because we are imagining of this, so the question comes that unless we are totally free from this, our own thoughts, in fact, our own thought, our own imaginations, you will never know what that beauty is actually. ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी. एक बार इनफैक्ट हर्षद जो बोल रही थी ना, जब उनके हस्बैंड जो है सुरेन, ही अटेंडेड दैट लास्ट टॉक, ही वाज टेलिंग मी, ही अटेंडेड दैट लास्ट टॉक इन मद्रास. तो उसमें उसने, कृष्णा जी वाज लास्ट, उसके बाद विद इन अ मंथ ही पास्ड अवे. तो उसमें उसने कहा था कि ये जो आप जो सोच रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग विद द सेक्रेड, इट विल बी ओनली अ ड्रीम टिल यू वेकेट दैट स्पेस कंप्लीटली. अगर वो जगह बिल्कुल खाली नहीं कर दें, देन यू कैन नॉट एवर कनेक्ट विद दैट. फिर आपका इमेजिनरी कनेक्शन रहेगा, imaginations, things. So I just thought of that because of Anamika's name, unnamed, nameless. नहीं ठीक. हाँ, अनामिका कुछ और कहना है कुछ? नहीं सरिता. अच्छा, नहीं, अच्छा सुंदर बोला है आपने, बहुत बढ़िया. बिम्मी जी आप बोलिए. मेरी आवाज क्लियर है? मैंने ना ये आज वो दूसरा एक ईयरफोन आ रही है आवाज? बिल्कुल क्लियर आ रही है. हाँ. अच्छा फिर ठीक है. हाँ मैंने कहा पहले चेक कर लूं. अरे एक तो मुझे अभी जो कमल जी ने अनामिका का मतलब जैसे डिफाइन किया उसका मीनिंग का, तो मतलब हर अनामिका के नाम में ही एक वो नयापन है हर चीज में. मतलब वो आपने एक स्टेशनरी थिंग पर रहे नहीं. और पूरे टॉक में एक तो वही ना कि चाहे वो अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज या अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, हम अपने जो थॉट्स डेवलप करते हैं वो हमेशा जो पास्ट में जो मेरे साथ हो चुका है उसके बेसिस पर, या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नॉलेज अक्यूमुलेट की है, या जो मैंने देखा ही है, या मैंने कहीं में गई, मैंने वो देखा और मैंने उसके बेसिस के ऊपर उसका एक इम्प्रेशन अपने दिमाग में छाप लिया. और अगला जो मेरा एक्शन है वो उस इम्प्रेशन के बेसिस पर जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड करती रही हूँ. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नयापन लाओ हर बारी, और नयापन लाने के लिए अपने आप को खाली करना जरूरी है. दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कैन बी टू सम एक्सटेंट लिटिल बिट ऑफ हेल्पर, बट डोंट get stuck to it. तो वो जो मोना ने एक बारी पूछा था कि सनातन का मतलब क्या होता है, तो वही है कि हर चीज में नयापन है. और जो सरिता जी ने एक वो कही, एक वो एक्सपीरियंस माइंड और एक सियर माइंड. तो एक्सपीरियंस माइंड का ठीक है, आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा. बट इफ यू हैव टू बी, जैसे कहते हैं ना, प्योर कॉन्शियस माइंड का, उसके अंदर आपका आगे पीछे का कुछ लेना देना ही नहीं है. उसी समय वो कहते हैं उसी समय वो चीज पनप रही है. आपने उसको जैसे आपके सामने आया, आपने वैसे उसको कंज्यूम कर लिया और फिर वो आगे. तो एक तो वही है कि वही जो वर्ड बार बार आ रहा था, कंडीशनिंग. और हमारे पूरे जीवन में हमारा वही कंडीशनिंग, जब हम पैदा होते हैं तो एक वही नो माइंड से पैदा होते हैं, पर फिर धीरे धीरे जैसे परिवार, फिर जो स्कूल गए वहां पर कुछ और सीखा, फिर ये हुआ, तो वो इतना हम इकट्ठा करके चलते हैं कि हम एक वो फ्री होके कहीं पर भी हम अपना थॉट या डिसीजंस कर ही नहीं रहे हैं उन चीजों से प्रभावित होके. तो कृष्णमूर्ति जी ने हमेशा वही कि ना कि राइज अबव ऑल दीज थिंग्स एंड लिव इन द प्रेजेंट. और वही वो गाना बार बार वो याद आता है जिसमें वो है, हर घड़ी बदल रही है रूह जिंदगी. तो हर घड़ी, हर पल वो बदल रही है, नॉट अ डे. और वो तो उसमें
हाँ वो मुझे क्योंकि वही नथिंग इज कांस्टेंट और नेचुरलपन आना चाहिए। मतलब वही है ना कि वो जो एनालिसिस की भी बात हुई, जो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत बार एनालिसिस का भी कहा, जब आप एनालिसिस भी कर रहे हो, वो तो कह रहे हो उस एनालिसिस के भाव से भी आप ऊपर उठ जाओ। हम क्या होता है कि जब द मोमेंट वी स्टार्ट एनालाइजिंग ऑल्सो, we are actually again moving into the past and trying to then understand from that point of view. But when you have risen above the analysis state also, then you are in the moment, you are acting as per that. अब इसमें जब वो बता रहे थे तो मुझे एक मतलब अपने वो भाई से रिलेटेड आई कि जैसे उसका जो डॉक्टर है, एक उसने 2 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, वही तो एक जो सर्जन वाला डॉक्टर है जो वो कहता है कि जी सर्जरी नहीं हो सकती, और वो ये कह रहा है कि तुम लोग ये फालतू में वेस्ट कर रहे हो पैसा, कीमो वीमो एंड ऑल दैट, एंड गेट इनटू जस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड प्लीज यूज योर मनी वाइजली। मतलब उसका ये कहना था कि नथिंग इज, देयर इज नो सोल्यूशन टू योर डिजीज, तो छोड़ दे अब तू ये सब कुछ इतना वो करना। बट द अदर साइड हिज डॉक्टर ऑफ अपोलो ही सेज नो, वील कंटिन्यू, हम वो करेंगे, अब मैं दवाई बदल दूंगा, अब मैं कर दूंगा। तो एक डॉक्टर है जो ही स्टक टू दी, जी पहले ऐसे है, पहले केसेस में ऐसे ही हुआ है और ये तो निश्चित ही है कि भाई दी एंड आना ही, मतलब टाइम फ्रेम एंड ऑल दैट। एंड दिस डॉक्टर इज सेइंग कि नो, लेट मी ट्राई। सो एवरी टाइम ही इज कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया। ही ठीक है, दैट पास्ट नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस इज देयर, but he's not stuck to it, and he's changing as per time, and he's wanting to experiment। और वही साइंटिस्ट का होता है, यदि वो वहीं पर अटक जाए कि मेरी ये उस बंदे ने ये डिस्कवरी की थी और उसमें ऐसा था, तो कहीं पर नयापन आएगा ही नहीं, और कहीं पर आप एक नया अप्रोच भी नहीं ला पाओगे। वो जैसे किसी ने कह दिया कि पृथ्वी गोल है तो वो गोल है, वो है सूरज के आसपास के घूमने की जगह सूरज हमारे आसपास घूम रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जब उसने अलग प्रूफ किया तो उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। तो नयापन लाने के लिए यू हैव टू लीव व्हाट इज देयर बिहाइंड, वेदर इट इज योर नॉलेज और वेदर इट इज योर एक्सपीरियंस, एंड बी इन दैट मोमेंट एंड एक्ट। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब उसमें बताया गया कि वही रिलेशनशिप्स में भी जो आपका कल आपके हस्बैंड के साथ किसी चीज पर आर्ग्यूमेंट हुआ, वो उस समय की सिचुएशन पर वो हुआ, और देन नेक्स्ट टाइम वो मतलब अपने मन की, मतलब डे टू डे में भी अपनी मन की शांति और अपने रिश्तों को भी सही तरीके से बनाए रखने के लिए भी इट्स सो हेल्पफुल दैट यू लीव व्हाट इज इन द पास्ट एंड बी इन द मोमेंट। क्योंकि वो कल जो था वो कल था, वो कल वो समय उस वैसे उसका दूसरा रूप था, उसके उस अनुसार आज वो दूसरा रूप हो सकता है। पर यदि मैं सोच रखी कि ये तो है ही ऐसा, ये तो यही करेगा, ये तो पहले ही है, तो मैं पहले ही अपनी वो डॉगमास जो है ना वो मैं लेके चल रही हूँ। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। मतलब ठीक है, बिल्कुल। मतलब जो करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चीज को नोट नहीं कर पाता माइंड, यदि कंडीशन होता है तो। तो जो सीयर वाली जो पोजीशन है वो हमारी खत्म हो जाती है यदि हम कंडीशनिंग में जीते हैं तो। वो अब करंट वाली भी जो चीजें हैं वो भी रिकॉर्ड होती चली जाती हैं एक्चुअली, उसका भी रिकॉर्डिंग सिस्टम कंटिन्यूसली ऑन रहता है, और जबकि रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग आपकी जैसे माइंड के एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं, लेकिन जैसे ये होता है ना कि एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिला, जो भी आपने फूड बाहर से ले रहे हैं और जो माइंड उसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो दोनों फ्रेशली माइंड कर रहे हैं तो ठीक है। अब उसमें से आउटसाइड नॉलेज के हिसाब से मेरे को कोई चीज़ उठानी है तो उस समय मैं उसी समय ही उसको चीज को चूज करूंगी कि इसका प्रीवियस एक्शन भी ऐसा वाला था और करंट में भी अब इसका कंटिन्यूसली यही चल रहा है, तो अभी इस समय भी ये वही प्रीवियस मूवमेंट के साथ में अटैच होकर ये बिहेव कर रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ मैं तब कनेक्ट करती हूँ। तो यही है कि बस मतलब हर क्षण जो है आपकी आंख से बच ना जाए कोई भी थॉट,
और थॉट, हाँ बस यही होता है मतलब इसमें Sarita ji, you know, like सुपरविजन। we talked about medical thing like treatment and all. तो एक अभी बहुत recent story याद आई, actually just few months back only. My uncle he's about 83 he was, and now of course he passed away recently. तो he had a heart attack. तो he's about 83, तो उनको हम लोग ले गए वहां पर, यहाँ पर कलकत्ते में जो कार्डियक सेंटर है, बिरला सेंटर, बिरला मेडिकल रिसर्च, तो वहां ले गए। तो वहां पर एक्चुअली he had to be there for a while under one particular cardiologist, और वहां स्टेंट वगैरह बैठाया गया। एंड देन आफ्टर दैट वी वर कंसल्टिंग द डॉक्टर, द कार्डियोलॉजिस्ट। फिर पता चला that somehow or the other we got the feeling that they are trying to push towards bypass surgery. तो मुझे ऐसा लगा एक्चुअली, बिकॉज यू नो नाउ हम सब जानते हैं कि आज मेडिकल प्रोफेशन हैज बिकम सो ग्रीडी एंड दे डोंट रियली ऑलवेज लुक एट द पेशेंट, यू नो। तो व्हेन वी कुड सेंस दैट ये थोड़ा डायरेक्शन इज गोइंग एट ए सेल्फिश लेवल, ऐसा लग रहा था। बिकॉज कई बार एक्चुअली उनके पास मैं एक बार गया था, उसने कहा कि आप तो इस एरिया में रहते हो, तो कैन यू हैव अ लुक? एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ बंगलो इन दैट एरिया। एक्चुअली आई हैव गॉट अ 4-bedroom flat, but I am looking for a bungalow. So I said, okay, but I could make out that the entire motive of the person is very different from what the medical profession, would say. तो किसी ने हमको कहा कि actually in the Birla research only there is a young doctor. He's not very old, he's only 40, cardiologist. अब उनसे एक बार मिलो, because he has acquired good reputation for being very, very impartial, and somehow people have got an affection for him. तो हम वहाँ चले गए, उनके साथ अपॉइंटमेंट लिया। तो अंकल को ले गए, उनको ले गए, तो उनको डॉक्टर साहब के साथ देखा, he examined him properly and he told him that you don't need to do anything. So then after that, because he's only 40, so I said that his आपने ये कहा, but all your associates here वो ऐसे बोल रहे थे। So then he told me a very nice story. He said that, when I was doing my studies in cardiology and when I became a cardiologist, I was determined to see how I can operate differently compared to the others in the medical profession. किस तरह से different करें? How to make out, because this greed will come, सबको पैसा दरकार है, everybody imagines this and that. So then he said, very frank discussion we had together with his daughter also was there. My Kaka's daughter was there. So the doctor said that I just thought that the only way to do that is to look at the patient and imagine he is your father, or she is your mother, or he is your brother. Literally, you imagine that he is one. You are one with that person. तब क्या हो जाएगा? Then entirely your movements will be totally free of any greed, any sort of other motives. तो इसलिए मैंने बोला कि now see, he is 83. I would never recommend a bypass surgery at the age of 83. तो फिर my uncle was also very happy and we were so impressed. I wrote about it also in a short article. I wrote about it that the first time I faced but a very good example of how right action जिसको बोलते हैं, how to get to right action. And so my uncle was also so happy. He is telling him, Doctor Sahab, एक छोटा सा प्रश्न है. Actually, I am very fond of puchka. In Calcutta, we call puchka. That's in another place called pani puri. I am very, very, very fond of puchka. Can I have puchkas once in a while? He said, you can have puchka whenever you like, but don't overdo anything. And that is my advice for everybody. Don't overdo anything, but you can have everything. So I mentioned this example because the medical thing came up, and everything stems from that. जो conditioning ऐसा हो गया है that even the doctor is not conscious in other places that the motive that is governing his action is greed. Actually, वो उनको पता ही नहीं है. Very professionally sound, very professionally good doctor, but उनको ये लगता है कि अगर ये मिल गया bypass वाला तो 2-3 लाख रुपया मिल जाएगा. Actually, so. That is what I think the whole story is how the conditioning takes complete control, and you may be very efficient, very, very talented and all that, but if the goodness is not there, तो सब गया. Absolutely. I just wanted to share that because maybe brought up the medical thing. It was very interesting. Yeah. इसमें सिर्फ खाली एक डॉक्टर की बात नहीं है कमल जी, इसमें अपने ऊपर भी डिपेंड करता है. आप मतलब कौन से, हाँ बिम्मी बताएगी, शायद बिम्मी कुछ एक्सपीरियंस बताएंगी. हाँ बिम्मी जी आप बोलिए. हाँ,
हाँ, नहीं नहीं, दैट आई फुली अग्री कि आजकल वो मेडिकल प्रोफेशन ऐसा हो गया है कि उसमें वो बिजनेस देखते हैं। और ये भी हमारे दिमाग में थॉट आया कि जब ये वाला डॉक्टर जो भी उसका इलाज कर रहा है, जब ही सेड कि नहीं वील कंटिन्यू, जबकि उस डॉक्टर ने कहा कि वो जो दूसरे सर्जन ने कहा, एंड ही हैपेंस टू बी वो लीलावती का, एंड ही हैपेंस टू बी माय ब्रदर्स कहते हैं बॉस है, या मतलब उसका जो भी कुलीग है उसका भाई। तो वो भी वैसे एक्सपीरियंस वाइज काफी साउंड है, बट उसने कहा कि इम्यूनो तो करवाने की इसके ऊपर कोई इम्यूनो का असर नहीं हो रहा। यदि असर हो रहा होता तो अभी तक इसका मतलब नीचे मतलब सही होना शुरू हो जाता, मतलब रिवर्स में जाना शुरू हो जाता, और ये तो बढ़ ही गया है। तो तो पर ये व्हेन दे केम बैक टू दिस वन, ही सेड कि नहीं वील कंटिन्यू विद इम्यूनो ऑल्सो। तो एक बार ही हमारे दिमाग में वो पक्का आया कि भाई क्योंकि इम्यूनो का बहुत महंगा होता है, इसकी पक्का इस डॉक्टर की कोई कमीशन होती होगी, तभी ही इज इंसिस्टिंग कि वील कंटिन्यू विद द इम्यूनो। बट then we had a discussion among ourselves, and we felt कि यदि ऐसा भी है, यदि वो कमीशन भी ले रहा है, पर we from our side क्योंकि we have the resources, मतलब हमारे पास पैसा है और हम वो एक तरह का रिस्क का हो या जो भी कहो ले सकते हैं, तो हम let's continue with immuno, even if it is 0.1% भी उसको यदि वो कुछ लेके आ रहा है, उसका पॉजिटिविटी उसके अंदर लेके आ रहा है, तो लेट अस कंटिन्यू। क्योंकि आफ्टर माय ब्रदर वाज मोर कन्विंस्ड कि जो मेरा ये वाला डॉक्टर है जो ट्राई कर रहा है, ये ठीक है, आई एम इन गुड हैंड्स। तो एक तो मेरे भाई का उसके अंदर विश्वास उस डॉक्टर के अंदर, तो दैट पॉजिटिविटी, एंड देन लुकिंग इनटू कमीशन खा रहा होगा, पर 0.1% भी यदि उसको असर कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कंटिन्यू विद द अदर थिंग्स ऑल्सो। नाउ वी लुक इनटू द अदर थिंग्स, जैसे जो भी ऑल्टरनेट मेडिसिन, उसको भी ट्राई करना शुरू कर दें कि क्या चीज असर कर जाए, और हमें कल वो ना हो कि भाई हमने ये ट्राई नहीं किया। उसका अपना विश्वास ही उसको खींच सकता है, कुछ और चीज उसको हेल्प कर सकती है, चाहे खाना हो चाहे जो हो, वो भी है। So then, if we are not, मतलब पैसों से हम वो नहीं है, मतलब we are not thinking about the money part now, तो वो भी है। तो वो उसमें ये है कि मेरा भाई तो कभी कभी अपने ऑफिसर से कहता है कि नहीं मैं तो देखना कंटिन्यू करूंगा, एंड आई विल बिकम एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स, कि देखो इतना भी होने के बाद मैं इतना जी लिया and all that. At times he says that also. So you never know. So that the thing only, that नयापन I feel comes only. तो हम तो मतलब maybe the doctors are wrong, और maybe डॉक्टर के मन में लालच है, but we have that faith. From our side, we are standing as very true to the thing. So वो अपना कर्म कर रहा है, अपनी सोच से वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। ये ना जैसे एक पेशेंट तो एक एज अ फाइटर स्पिरिट उसकी पूरी तरह से है, लेकिन जो डॉक्टर यदि वो गलत मिसगाइड कर रहा है, या फिर कोई मतलब लालच भी कह दीजिए, तो लालच में भी मिसगाइड नहीं कर रहा, लेकिन लालच है, उसे लालच है, मिसगाइड नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है ना, कि वो जो ट्रीटमेंट है वो वैसा ही होना चाहिए, वो उसके अंदर है, लेकिन वो इस कारण नहीं कह रहा, उस पेशेंट के लिए बाई चांस वही चीज बेटर है, कम कर सकते हैं। हाँ, वही टेकिंग इट पॉजिटिवली। हाँ, तो स्वधर्म की बात आ गई ना, तो स्वधर्म की बात आ गई ना, तो हर इंडिविजुअल पे मैटर करेगा ना कि कौन कितने उसमें स्टेज में जाके शांति में जा रहा है। अब वो अपनी एडवाइस यदि नहीं देगा ना, तो वो अंदर खुद की कॉन्शियसनेस से इंसान लड़ता है, बाकी तो बाहर में तो कुछ मिटता बनता है नहीं। यदि बिल्कुल एक स्पिरिचुअल बिल्कुल लेवल से, या बिल्कुल आप ये एरियल व्यू आप लेंगे, तो वहां पर तो कुछ भी बनता बिगड़ता है नहीं। अब नीचे में जो माइंड का जो गेम चल रहा है, तो माइंड का गेम तो इंसान रिलैक्स तो तभी होगा ना जब वो स्वधर्म को अच्छी तरह से निभाएगा। आपने डॉक्टर का धर्म निभाएगा, पेशेंट का धर्म निभाएगा, पेशेंस का निभाना है हमेशा।
तो बस वही है। तो स्वधर्म पे ही जाकर शांति मिलती है। और स्वधर्म जब मैंने किया तो उसमें मैं चारों तरफ के दरवाजे खटखटा रही हूँ, लेकिन वो दूसरा वाला यदि मेरे साथ में चीट कर रहा है तो वो उसकी कॉन्शियसनेस उसे नहीं मतलब रिलैक्स नहीं रहने देगी। लेकिन मैं तो जा ही रही हूँ ना, तो वो ऑनेस्टी मेरे को अपने धर्म के प्रति ही देख सकती हूँ, मैं बाकी नहीं देख सकती कौन क्या चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा। वो उसका धर्म जाने। राइट हाँ, यही है, वही है। ये इसी तरीके से जी सकते हो, नहीं तो शांति तो मिलेगी नहीं। नहीं तो आप इलाज करा के भी शांति में नहीं रहोगे कि ये चीट ही ना कर रहा हो, कहीं ये ना कर रहा हो। तो एक बार तो आप पूरी तरह से गॉड फादर बन के ही, मतलब गॉड फादर बना दो दूसरे को, चाहे वो नहीं भी हो तो भी। हमारी श्रद्धा कई बार दूसरे में से परमात्मा को जन्मा देती है, कई बार ऐसा भी होता है। मैं यदि किसी पे बिल्कुल मैं कहती हूँ कि नहीं इसी में से ही, पत्थर में से ही, यदि उसमें से ही मेरे को ठीक होना है तो वो पत्थर में से भी जनरेट हो जाएगा, भगवान निकल जाएगा उसमें से। उसके अंदर मतलब वो हमारी, हम जो उसको पावर देंगे ना गॉड की, तो वो हमारी रेजिस से उसके अंदर गॉड की वो फीलिंग आ जाएगी। वो चाहे 10 लोगों के साथ चीटिंग करेगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा। ऐसी हर वक्त चेंज होता रहता है हमारा माइंड भी। हमारे सामने कौन सा आदमी खड़ा है सत्य के उसमें बैठा है ना, जैसे यदि कोई बिल्कुल गॉड फादर ही बनाने को तुम्हारे को तैयार है तो दूसरे आदमी का भी मन परिवर्तन हो जाता है उस समय। ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनर्जी देते हैं दूसरे को, सामने वाले को। चोर भी होते हैं, चोर भी ठीक हो जाते हैं। चोर भी सबके लिए थोड़ी ना चोर होता है, बिल्कुल चोर सबके लिए। मतलब मेरा तो ऐसे ही बिलीव है। मेरे को तो अपने बिलीव में इतनी जबरदस्त पावर दिखाई देती है। मेरे को तो लगता है मैं पूरी यूनिवर्स को घुमा सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। मतलब इस तरीके की फीलिंग रहती है। मैं तो पता नहीं स्काई वाले लेवल पर ही रहती हूँ हमेशा। मेरे को ऐसा लगता है मैं तो सब कुछ घुमा सकती हूँ। सामने वाला चोर कैसे मिल जाएगा, और मिलेगा भी तो वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उतना सब्र भी होता है कि सामने वाले ने यदि वो करी है तो कोई बात नहीं, उसका भी मन भर जाएगा, कोई नहीं। वो थोड़ा सा कमी में होगा तो ठीक है, मन भर जाएगा तो वो भी हमारे लेवल पे आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ नहीं है। फेथ में बड़ी पावर होती है, जबरदस्त पावर होती है। हाँ जी कमल जी आप बोलिए। आपकी No, I think that's really right. Actually, even same thing, with Mimi ji जैसे बोल रहे थे, Mimi बोल रही थी. Actually, I think so much depends, from the body language you can judge what is happening on the other side. अब जैसे हम कहेंगे, जैसे there are so many doctors, you can see the sincerity and the commitment. और कहीं भी आपको बने ये एक तो ये आ जाता है, perhaps over a period of time you get to see that ये किस लेवल से ऑपरेट कर रहा है. Is he operating for genuine interest in the patient or is there some other motive? तो ये that is very true. I mean, it's not a generalize करना भी ठीक नहीं है, because there are some lovely people also in the medical profession, and they are actually that's why it is all surviving. People are sort of okay. Both levels exist together सब जगह. नहीं चेंज भी होते हैं कमल जी, ऐसा नहीं होता। जैसे एक अप्रोच होती है ना, चेंज भी बहुत होता है। हमारी भी अपनी भी मैटर करती है कि हमारे उस टाइम स्टार की पोजीशन कैसी है ना, और हम कैसे हैं, तो वो मैटर वो भी करता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। चलो अब सबके एक्सपीरियंस पूछते हैं। हाँ जी अनामिका जी आप बोलना शुरू करें अब। जो अभी ये अभी बातचीत जो डिस्कशन हुआ है ना, उस डिस्कशन से रिलेटेड। जी अनामिका जी बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। दीपा आप बोलना चाहेंगी कुछ? नहीं दीपा भी नहीं। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो भाई का जो एटीट्यूड है वो बहुत सही है। कल ही हमने एक पिक्चर देखा गिफ्टेड हैंड्स, तो उसमें जो डॉक्टर था ना, उसका खुद के ट्विंस नहीं बच पाए थे, but he separated many twins after that, and it was a mystery. जो conjoined twins आते हैं ना, उनको लाइफ कैसे देना। तो ये जो स्टोरी थी उसमें एक सेंटेंस मुझे इतना अच्छा लगा कि उसकी माँ बोलती है कि the mind has got infinite possibilities, the whole world is in your mind. So you have to just go inside your mind and find out all the solutions which you want. Don't worry. It's not something that can be taught to you. You go and do the operation, and the twins are going to die as it is. This is a true story. मैं share करूँगी links. So especially, I feel that doctors, when they are inspired, they do get a divine help. And I think that we are praying and hoping that
the Vimiji's brother gets that type of inspiration from his doctor, and he also doctor inspired and patient also inspired, both inspired. So ऐसे लगता है कि miracles do happen, and I think that मेरा खुद का भी केस में मेरे साथ मेरे दो young people in our family both passed away out of breast cancer in those days. जब इतनी इलाज नहीं थी तो मेरा ससुर को बहुत चिंता होता था, तुमको कुछ हो जाएगा तो क्या। हम बोला ऊपर कोई कभी दुनिया अटकते नहीं है, यदि भगवान को रखना आएगा तो रखेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो ऐसे जो एटीट्यूड जब लीडर होकर हम जी रहे थे ना, तो अपने आप हिम्मत भी आ जाती है। तो विमी ब्रदर्स लीडर, उसको जीना है, उसको लीडर है, और उसको ऐसा होता है कि मैं ठीक हूँगा, मेरा कुछ मिशन है लाइफ में अभी, तो वो जो है वो मिशन उसको आगे ले जाएगा। परफेक्ट है, बिल्कुल। हाँ जी, और कोई अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता है? जी बोलिए। दीपा तो आउट हो गई। हाँ जी, नामिका, मोना कुछ? हाँ जी, ये मतलब जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल कोई मतलब पहले से वो कर लूं प्लान और कोई भी बात कर, लेकिन वो जैसे परमात्मा ने पहले से रचा हुआ होता तो वैसे ही है। तो मेरे को ये रियलाइज होता है कि मैंने अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करा कि मैं ऐसे कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं ऐसे कर लूं। इन चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, नहीं, ठीक है। कमल जी, आपका क्या कहना है इस बात पे जो मोना कह रही है? नहीं, हाँ, मैंने ये एक्चुअली हम ये कहेंगे एक्चुअली कभी कि इट्स बेटर, मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू क्वेश्चन everything the way we look at life, actually I would say, because कभी क्या होता है, even the way we look at things that betrays a certain क्या कहेंगे उसको, एक तरह का dependency on something which we don't know actually what the dependency is for. आज पढ़ रहा था, very interesting quotation मैंने देखा आज Facebook में कुछ कर रहा था मैं, so I saw a quotation from Sadhguru, very interesting. He's saying religions exist only because people don't know the creator within. Otherwise, who would believe that God is there sitting in heaven actually? To me actually, Sarita ji, I think the central issue that we must actually question, what do we mean by religion? What is the truly religious mind? इसे हम क्या religious धर्म को क्या मानते हैं? तो अगर जो धर्म का जो एसेंस है, अगर उसको बारे में अगर हम लोग when we say we talking about dharma means something that we are talking in different ways, only we are given names actually. But we really don't know that, and are we really interested to find out? So that, for me, that becomes a very central issue in this whole thing actually. In fact, everything I suppose leading to that only, the truth or whatever one says, बिल्कुल। ये इसमें ना एक उसकी थी, नानक वाणी थी, तो नानक ने ना ये बोला उसको, ये जो प्रेयर करते हैं ना मुस्लिम्स, तो उसमें बोला कि यदि खुदा तुम्हारा आकाश में है तो तुम नीचे सर क्यों झुकाया हुआ है तुमने, और यदि खुदा तुम्हारे अंदर है तो तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो उसे। तो वही है, तो जिसने अपने अंदर पाया नहीं उसे तो वो बाहर तो मिलेगा ही नहीं, वो है ही नहीं बाहर, आपके अंदर स्वयं के अंदर बैठा है ना। तो वही चीज है जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वही है। हमको इनफैक्ट ये जो सेशन आज हम लोग किया एक्चुअली, अगर इसे समराइज करना हो, जस्ट इन माय ओन वर्ड्स बिकॉज दे मे नॉट बी परफेक्ट, बट अगर समराइज करना हो तो हमारा जो दिखना जो है, ऐसा टाइम होना चाहिए व्हेन व्हाटएवर वी आर सीइंग इज टोटली what is जो है totally free from my own imagination, my own creations, my own hurts. When that state is there, then actually that becomes the building block for something different actually. But वो स्थिति भी बहुत difficult हो जाती है because हमारा दिखना ही actually polluted है actually. It is always due to some sort of either you can call it ambition, some egoistic sort of a drive, or whatever. So that I believe is something, it is so beautiful, and that is why I think people like Krishna ji or Osho or others, because they talk so directly. That's why I think people find it even all the more difficult, perhaps,
It's so नहीं, even जो to question. दिखेगा जो विजिबल है कमल जी, जैसे जो विजिबल जैसे थॉट्स होते हैं हमारे, बुद्धि होती है कि उसमें क्या चल रहा है, हमारे बॉडी जो है विजिबल है, जो भी विजिबल है वो जो भी विजिबल है वो मैं नहीं हूँ। हाँ, तो अब जो भी विजिबल है वो मैं नहीं हूँ, तो जो विजिबल जो देख रहा है मैं वो हूँ। तो आप फौरन आ गए ना वहां पर, तो एकदम ही सारा ही टोटल आपने सारा कुछ एक तरीके से बैगेज सारा ही वो कर दिया ना, सारा ही बैगेज उतार दिया ना, एक ही बार में खत्म कर दिया। इंटेलेक्ट मैं नहीं, माइंड मैं नहीं, आइज मैं नहीं, तो वो सारा बॉडी को रिजेक्ट करते चले गए पहले, फिर वो जो सूक्ष्म जो सटल बॉडी है उसको रिजेक्ट करते चले गए, तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो जब मैं वो चीज़ हुई नहीं हूँ, तो फिर वो जो रिजेक्ट करने वाला था वो है, वो बस वो बचा क्या? वो सिंगल बच गया ना, अकेला, बस अकेला मैं हूँ। तो अब अकेले यदि हम यदि वहाँ हैं तो दूसरे सारे भी तो वही हैं, वही है ना, क्योंकि इंटेलेक्ट से ही तो हम अलग अलग माइंड से तो अलग अलग बनाए हुए हैं हमने। मतलब इतना मतलब इजी है प्रोसेस, है इतना इजी, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ये है। हाँ जी, ये एक बार इसे अनामिका और इनसे पूछते हैं। बिम्मी कुछ बोलेंगी? हाँ जी बिम्मी जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है जी। हाँ, ये जब क्या कहते हैं कमल जी ने शुरू किया था, तो उसी के अंदर रिलीजियस माइंड की बात हुई थी। कृष्णमूर्ति जी ने जो स्टार्ट किया था, कमल जी एक बारी वो लाइन एक बारी आप फिर से बोल देना। हाँ, ये इसमें था ना इनके ये व्हाट्सएप। हाँ, शुरू में अच्छा व्हाट्सएप में है, स्टार्टिंग में। हाँ, इन्होंने ये मटेरियल पहले दिन भेज देते हैं। हाँ, अच्छा मेरे तो उसमें इट स्टार्टेड फ्रॉम द रिलीजियस माइंड ओनली, कि हैव अ रिलीजियस माइंड, जो yes. है ना, there was some line there. Yes, I just read these just two lines. हाँ, हाँ. We'll go on talking over together the subject which we talked about when we last met. It seems to me it is so important to understand and be in a state in which the mind is completely religious. Yeah. Such a mind, not abstractly, not theoretically, only such a mind can solve all our problems. And a religious mind is not burdened with any of the idiotic ideologies or dogmas or assumptions, but it is concerned with facts, with what is, and then going beyond it. Yeah. So this was the thing about it. हाँ, so this religious mind, हम religion को दूसरे वे से वो define करना शुरू करते हैं, but religious mind is actually that no mind. और वो जो हाँ, and what मोना ने कहा था कि जो कुछ है वो जैसे पहले से ही डिफाइंड है और वो है, तो हम उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं भी कुछ भी करने में ऐसे। आई स्लाइटली डिसएग्री ऑन दैट, क्योंकि जो डिफाइंड भी है वो हमें पता ही नहीं है, इट इज अननोन, यू आर इन दैट अननोन रेल्म। तो यदि मेरा ये भी सोचना कि जो कुछ है वो पहले से ही डिफाइंड है, तो फिर से मैं वो डोगमा में आ गई कि, और फिर मैंने कुछ अपने आप एक नयापन लाया ही नहीं, मैंने पहले ही हथियार डाल लिए कि भाई ये तो होना ही है, ये तो होगा ही। अब जैसे वही इस स्टेट में ही कि एक मिनट, व्हाट इज दिस फोन कमिंग, सॉरी एक मिनट, आई थिंक देयर सम फोन कमिंग, लेट मी कैंसिल दैट शिट। Oh shit. एक मुझे फोन कैंसिल नहीं हो रहा था, सॉरी। हेलो। Yes, we हेलो। हाँ, there was some phone with Rajan Khan. So it is यदि मैंने पहले से ही वो डिफाइन कर लिया कि भाई कहते हैं ये तो होना ही है, या दैट, तो और यदि मैं एक जगह ये है कि मैं ये लेके चलूं कि इट्स एन अननोन थिंग, मतलब ठीक है, I mean everyone has to die, that is a fact, but then I don't know when I'm going to be dying. मतलब यदि एक पंडित कह रहा है कि तू 10 दिन जिएगा और एक कह रहा है कि तू 60 साल जिएगा, तो मैं कहते हैं यदि मैं उसको मान लूं कि वो जो 60 साल वाला, मतलब ना उसको पता है ना इसको पता है,
यू डोंट नो, आई मीन यदि वो ए कह रहा है और बी कह रहा है या मेरा सी मन, तो लेट मी बी गवर्न्ड मोर बाय जो मेरा मन कह रहा है. यदि मुझे मेरा मन सी होके बी में विश्वास रखते हुए अपने उसको बढ़ा सकता है तो लेट इट बी. सो लुकिंग इनटू दी आई फील कि गेटिंग स्टक और ये सोचना कि व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय एनर्जी बिकॉज एवरीथिंग इज पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड और प्री डिफाइंड, तो मैं कभी नयापन ला ही नहीं पाऊंगी. आई हैव टू इन्वेस्ट माई दैट एनर्जी और वट एवर इन दैट मोमेंट. जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसको उस वे से बस वहां पर अपनी ऊर्जा को लगाऊं, ना कि जो आगे होगा या जो पीछे हो चुका है. नहीं, इसमें ना बिम्मी जी जैसे पहले आप उस पे कह रहे हो ना कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बात ये नहीं है. ये जैसे मेरी बॉडी में कोई फिजिकल में कोई प्रॉब्लम आई है मुझे, तो मैं फिजिकल में जो प्रॉब्लम आई है तो मैं तो सबसे पहले तो मेरे को अपने उसमें जाना पड़ेगा ना कि मैं बॉडी हूँ क्या हूँ, मैं बॉडी हूँ, माइंड हूँ क्या हूँ, मैं क्या हूँ. तो मैं बिना उनके भी मेरी एग्जिस्टेंस है ना. तो जब उसके बिना है तो फिर मैं उसके ऊपर बॉडी को मैं पूरी तरह से ट्रीट करूंगी. फिर उसमें मैं डरूंगी नहीं, किसी भी चीज़ में हाइड नहीं होंगी कि मैं ये यदि मेरी बॉडी को कुछ हो जाएगा. यदि आप उस वाली इनसिक्योर लेवल पर यदि आप वो कर रहे हो ना, कोई भी एफर्ट कर रहे हो, तो इनसिक्योरिटी आपकी कंटिन्यूसली बनी रहेगी, उसमें मतलब प्रॉब्लम रहेगी. हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, इनसिक्योरिटी हम रख ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी क्योंकि मैं तो अभी इनसिक्योर तो मैं तब होंगी ना जब मैंने सोच लिया, जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारे 7 महीने और रह गए हैं, तो मैं इनसिक्योर हो गई. मैं उस बात को मान ही नहीं रही हूँ कि मेरे 7 महीने हैं. आई एम सेइंग कि ओके जी अभी ऑफिस में. हेलो. हाँ, मेरा सेशन चल रहा है बेटा. अच्छा ठीक है. मैं अभी करती हूँ, भैया का भी कॉल आ रहा था, अभी करती हूँ. करने को तैयार ही नहीं था. उसने कहा कि भाई ये तो मेरे अपने हैं और ये तो मैं इनको कैसे मारूं. तो मतलब उसमें से या वो ये सोच के कि जी कहते हैं ये अर्जुन युद्ध में ये सोच के आता कि मतलब मैं तो हार जाऊंगा या तो मैं मारा जाऊंगा, तो आप पहले से ही इनसिक्योर हो गए. तो दैट इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए भी that if you are there in the moment, you are in a positive frame of mind, and that is going to be giving you more energy rather than the energy of the experience or the energy of the unknown. Energy of the known. Energy of the experience and the energy of the known. So it's better to be in the unknown. हाँ बिल्कुल. The unknown. हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है. हाँ जी अनामिका जी कुछ बोले आप. नहीं, वो तो उस टाइम पे जब भी बिम्मी जी बोले थोड़ा सा मतलब कुछ उसमें अदर वर्क में चली गई थी मैं. नहीं, वही मतलब कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, विल पावर मतलब जैसे उनके जो ब्रदर का है, तो मतलब चीजें चेंज होती, क्योंकि मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है. जब मेरा बेटा जस्ट 10 मंथ का था, उसे एक बहुत बैडली इन्फेक्शन आया था लीवर का. डॉक्टर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे. ऑलमोस्ट 10 डेज हो गया था. फिर मतलब सडनली फिर मैंने जब सरेंडर कर दिया, मैंने कहा कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है एकदम पूरा. तो मैंने जब सरेंडर किया उस टाइम सडनली सिचुएशन सब चेंज हो गई. फिर मैं टचवुड, मुझे हिंदुजा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स मिले हैं और जो स्टाफ था वहां का, टू गुड. तो क्या सपोर्ट दिया है उन्होंने आज तक. मतलब ऐसा लग रहा था उस टाइम पे मुझे कि भगवान ने एक सिचुएशन में से, टफ सिचुएशन में से निकाल कर जो ये सिचुएशन दिया है मुझे, मतलब कि सारी चीज फिर मतलब एकदम फटाक से उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया क्या इशू चल रहा था. क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो रिलेटेड टू ब्लड कैंसर था, लेकिन वो एक्वायर था उसका, मतलब उसको ब्लड कैंसर नहीं था, लेकिन बॉडी ने उसको ऐसे एक्वायर कर लिया था, एक इन्फेक्शन उस टाइप का. तो मतलब
अच्छा, वो नहीं ऐसा निकला। है मुझे। हाँ, तो ऐसे वो उसको मतलब मिराकल होते हैं। इन्फेक्शन उसी टाइप का ही था कि उसका मतलब ये वाइट सेल्स उसके रेड ब्लड सेल्स को ही ईट कर रहे थे, लेकिन वो ब्लड कैंसर नहीं था। उसे डॉक्टर को वही लगा था, लेकिन वो नहीं निकला बाद में। मतलब वो एक्वायर कर लिया था बॉडी ने एक इन्फेक्शन बाहर से। तो नहीं नहीं, ये होते तो है ही सब, लेकिन ये सब वो अभी भी मतलब बता दी हूँ ना, तो एकदम ऐसे उस सिचुएशन में से मतलब अब जाके मैं सच बताऊँ, ये गीता सेशन के बाद वो जो है मतलब जो मेरा बैगेज था वो अब जाके मेरा खत्म हुआ। नहीं तो 4-5 साल तो मैं पूरा टाइम हिलती ही रहती थी वो सिचुएशन सोच सोच के। तो लाइक होते हैं। और मेरे ख्याल से तभी कहते हैं ना कि डिफरेंट आउटलुक होना, क्योंकि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना जरूरी है। जैसे आप वही कह रहे हो ना कि एक डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इस तरह से कि ब्लड कैंसर ही कह दिया, एक ने कहा कि नहीं दिस इज एक्वायर्ड एंड कैन बी। तो द मोमेंट वही किसी भी चीज के अंदर, द मोमेंट यू ओपन दोज होराइजन, आप वही तभी वो कहते हैं ना दैट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कौन से पर्सपेक्टिव से क्या निकलेगा? यदि मैं अपने पर्सपेक्टिव में ही जीती रहूंगी तो फिर मैंने वही अपने आप को कन्फाइन कर दिया। तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फाइनमेंट्स, बी ओपन टू ऑल। मतलब ये सबसे और बड़ी वही हमारे सनातन धर्म में है वैसे, यही है। तभी तो हम क्वेश्चन करते हैं ना हर चीज को। हमारे कहीं पर भी हमने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि भगवान इसी तरफ है तो मैं उसी तरफ देख के पूजा करूंगी। ये तो मुझे लगता है कि वास्तु का इतना ज्यादा आ गया है कि यहाँ पर मंदिर रखना है, वहां पर वो रखना है। भगवान तो हर जगह थे, मंदिर रखना है तो कहीं पर भी रख दो। तो मतलब तुम्हारे दिल में यदि तुम्हें वहां पर तुमने कर दिया वहां पर, तो ये हमारे धर्म में तो कभी ऐसा था ही नहीं कि भाई आपने उस चीज को वैसे एक्सेप्ट कर लिया। हर चीज में क्वेश्चन, हर चीज में क्वेश्चन, जो उसमें से और पॉसिबिलिटी निकाल होती दे और है ना, निकाल दो। पॉसिबिलिटी हाँ। के ऊपर हम लॉक कर देते हैं, लॉक कर रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं होता हाँ। ऐसा। एंड मोमेंट तक भी जो है हमें करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब ये अप्रोच जो होती है बहुत अच्छी होती है। ओपन अप्रोच तो रखनी बहुत ही जरूरी है। एक इंसान होता है ना, जैसे कोई बीमार होता है, ये ऐसे वाला कैंसर टाइप की कोई डिजीज हो गई, तो हम पहले से ही इमेजिनेशन ये हो जाएगा कि नहीं बस ये तो इंसान नहीं रहेगा इतने दिन का। ऐसे बोलने लगे, उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये सब दुनिया भी बोलने लग जाती है साथ में। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, सबके साथ एक जैसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो ओपन तो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक करनी चाहिए कोशिश। लास्ट मोमेंट पे भी कहते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक भी उसके थे, ओशो के फादर जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जो है मतलब जो बियॉन्ड डेथ और बर्थ के मतलब चले गए, वो 2:30 बजे रात के टाइम में वो उनसे मिलने के लिए गए। तो उनकी जो अवेकनिंग थी वो लास्ट मोमेंट पे हुई है। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने उस चीज के दर्शन करे कि मैं तो कहीं भी नहीं जाता, मैं कहीं भी जाता आता नहीं, वो वाली अवस्था में वो उस टाइम में निकले। तो एक तरीके से जो बॉडी का जो पर्पस है हमारा लेने का, वो सॉल्व हो गया ना। वही तो लास्ट अल्टीमेट जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, सीक्रेट जो चीज होता है, वो चीज यही होती है ना कि इंसान अपने आप को जान लेता है बस। ये अवस्था सबसे ऊपर की होती है। तो ये इसी के कारण हम बार बार आते हैं यहाँ पर अर्थ पर। तो ये कितनी क्या ये ओशो का क्या है कहानी, ये मुझे नहीं पता। क्या उनके फादर का थे ना, ये फादर इनको गुरु की तरह से माना करते थे, इनके पैर वगैरह छूते थे ओशो के जो फादर थे। अच्छा। लेकिन फिर वो ना, जैसे ये फादर को ज्ञान वगैरह, लेकिन वो अंदर से ज्ञान का झरना खुद का नहीं फूटता ना जब तक। तो ये चीज जो उसको ओशो थी, ओशो को मालूम थी ये चीज कि ये अभी ज्ञान उतरा नहीं इनके अंदर। ऐसे एक होता है ना, जैसे अंदर से प्रकाश में हो जाती है ना स्थिति, हमारी खुद की प्रकाश हो जाती है स्थिति। मतलब हमको कहीं भी अंधेरा नहीं लगता, हमें हर सॉल्यूशन, मतलब हमें सॉल्यूशन किसी से पूछना नहीं पड़ता, हम खुद रोशनी हो जाते हैं। ऐसी वाली अवस्था ओशो की खुद की थी। तो उनको पता था कि इनके फादर को जो है वो संबोधि प्राप्त नहीं हुई है, ये चीज प्राप्त नहीं हुई है। तो वो जब अपने फादर को के पास में जब लास्ट में जब मिलने के लिए गए ना, वो तो मतलब योगी तो बन ही गए थे, निकल ही गए थे घर से बाहर। तो जब वो गए हैं तो तब वो उनको लास्ट में मतलब वो अमृत को प्राप्त हो गए थे उनके फादर। तो लास्ट मोमेंट वाली जो अवस्था थी ना, उन्होंने खुद देखी है ना ओशो ने। जो इंसान खुद की अवस्था वो प्राप्त कर लेता, वो ही देख पाता है सिर्फ कि ये निकल चुके हैं कि नहीं निकल चुके उससे पार। तो ये अवस्था उन्होंने फिर बाद में अपने उसमें किसी में बोली है अपने इसमें। तो बोली क्या है, मतलब ओशो की जो वो थी वो तो पता ही चलती है ना, वो जिस लेवल पर बोलते थे ओशो, और कितने लोग उनके बारे में जो ऐसा बोलते हैं। तो
एक अंधा वाला जो है जागृत मनुष्य के बारे में क्या बोलेगा? अंधा तो सोया हुआ मनुष्य बोल रहा है कि तू उठा हुआ नहीं है, उठा हुआ। अरे उठे हुए वाला बता सकता है तू सोया हुआ है। अभी मतलब सोया हुआ मनुष्य उठे हुए मनुष्य को कैसे बता सकता है कि तू सोया हुआ है और तू डोंगी है और फलाना है ढिमकाना है? जो उठा हुआ मनुष्य है वो बता सकता है सिर्फ कि जो है तू सोया हुआ है और तू कितनी गहरी नींद है अभी तेरी, कि जितना तू मेरे ऊपर मारने को तैयार है मुझे, तो तेरी कितनी मतलब नींद की जो अवस्था है तेरी कितनी गहरी है। अभी इन्होंने ना सोनपाल जी ने वो लगाई हुई है स्टोरी, एक उसकी अपने व्हाट्सएप पे लगाई हुई है स्टेटस पे। अभी मैंने उनको बल्कि वो जवाब भी दिया। उसमें ना उन्होंने कहा कि जैसे एक नाव में कोई एक सन्यासी बैठा हुआ था, तो उसको नींद लगी उसमें नाव में बैठे बैठे, तो उसकी जब नींद खुली तो उसने देखा दूसरी नाव जो है आके टकराई, तो वो एकदम आग बबूला होकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो बाद में पता चला कि उस बोट में कोई था ही नहीं। तो मैंने फिर सोनपाल जी को लिखा कि दोनों ही बोट खाली थी एक्चुअली। बिम्मी जी पता चला आपको क्या बोला मैंने? जो उसको गुस्सा आया सन्यासी को, तो मैंने कहा दोनों ही बोट खाली थी। क्या समझ आई बताओ? खाली तो दोनों बोट कैसे खाली हुई? दोनों बोट खाली हुई ना, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं थी ना। कॉन्शियसनेस होती तो उसको पता गुस्सा आने का कारण ही क्या था। गुस्सा तो वही करेगा ना जब कॉन्शियसनेस नहीं है। प्रकृति का लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बादल बन रहे हैं, गिर रहे हैं, बारिश हो रही है नीचे, किसी को कुछ खबर नहीं। तो ऐसे वाले सीन प्राकृतिक चलते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस नहीं होती तो इस प्रकार का खेल होता है हमसे। गुस्सा उत्सा सब चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड अपने आप रोल निभाता रहता है, अपने आप ही एक्ट आके। कॉन्शियसनेस है ही नहीं। तो मैंने कहा दोनों ही बोट खाली थी। तो मतलब मुझे हंसी आई, वो समझ गए थे, वो समझ गए, फिर उनका आया था उसमें। हाँ मैं समझ गई। अब समझ आ गई ना? हाँ, तो ये होता है, यही रोल हम करते हैं ज़्यादातर हमारे बॉडी में ओनर तो होता नहीं ना, वो माइंड पहले से एक्ट कर जाता है उस चीज़ के लिए। रिएक्शन मतलब सारे टोटल रिएक्शंस हमारे उस चीज़ का है मतलब। जी कमल जी आप बताइए कुछ। मैं बस अभी ज़्यादा जस्ट कंक्लूड करने के आगे जस्ट 1 मिनट आई से समथिंग। एक्चुअली आई रिमेम्बर यहाँ कृष्णमूर्ति सेंटर में एक वेरी ओल्ड लेडी, शी यूज्ड टू कम, शी इज अबाउट 80 years old एट दैट टाइम। तो वो आती थी एंड शी वाज क्वाइट सॉर्ट ऑफ quite deep into all these things, Krishnamurti and Osho and this and that. And so once in fact she told me something very interesting. She's now no more actually, but she told me something very interesting, that she was actually doing Gita Path every day and sort of doing reading the slokas, and I used to feel very religious. She used to say, I used to feel I'm such a religious person compared to X and compared to why nice feeling, agarbatti jalaya, ye kiya, wo kiya. But she said something so interesting, but a point came when after, probing more, when I started, even if one slok I could understand meaning to feel it, actually. Then actually I realized that even if you realize one slok also, the essence of it, then काम हो जाता है basically. And then she started saying that my desire, I'll put money into it. Can we do a translation of, do a book, where we can make Gita not mechanical for people, not mechanical, because हम लोग recite करते हैं and we feel very, very nice about it. In fact, one of the stand-up comedians was saying that वहाँ पर this Babaji was giving Gita Path and everybody was there, some was dozing, some was this thing. Then suddenly he said, now the path is over. Then everybody suddenly got up. So then they realized actually the path was over. So in a sense he was saying they were not even listening actually. So even this whole mechanical movement, which we call religious, she was pointing out that, I could really see the difference. Even one shlok, getting to the essence of it, made me realize that is it. That is all. Then you may listen, you may not listen. So I just found that very interesting, because sometimes our movements are also so mechanical. So-called religious movements, are so mechanical. वो ऐसा होता है ना कमल जी, जैसे वो होता है ना, जैसे मेमोराइज तो आपने कर लिया चीज को, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया। तो अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप पहले उसी वाले सेक्शन में रह गए ना। तो इसलिए जो रिलीजियस जो बुक्स हुआ करती थी, तो उसको कहते थे पाठ और पाठी दोनों अलग ना रह जाएं, एक हो जाए। तो वो जब तक हमारा ब्लड नहीं बनता, तो इसलिए तो हमें बार बार दोहराना पड़ता है इसको, बार बार दोहराना, और उसको जो है अंदर से इसके अर्थ को उतारना अपने अंदर, एसेंस को।
एसेंस को जब तक हमने फील नहीं किया, हमारा ब्लड नहीं बना, तो उसका कोई मतलब नहीं है बाहरी तौर का। जैसे ये होता है ना, रट लिया आपने, बस रट तो लिया लेकिन उसको जाना नहीं, तो वो वही अवस्था इसमें रहती है। तो वही ब्लड जब तक बनता नहीं ना, तो हमारे अंदर से जब तक हमारे अपने खुद के वचन नहीं बनते ना कोई चीज़ का, तो फिर हम कहते हैं ये कृष्ण ने बोला। अब कृष्ण का जो वचन है वो कृष्ण के पे अप्लाई होता था, वो हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होगा, तो उसके एसेंस में जाना पड़ेगा हमें। एसेंस जब तक जानेंगे नहीं तो आएगा नहीं, मज़ा नहीं आता। और वैसे भी जीने में मज़ा ही नहीं आएगा आपको। इवन जैसे वो कहते हैं ना, जैसे सेकंड क्लास के बच्चे को 5th क्लास का जो है क्वेश्चन उसको दे दिया, तो वो तो मज़ा नहीं आता फिर उसमें, वो तो रटने वाली बात रह जाती है। बिल्कुल, चलिए खत्म करें कमल जी अब। हाँ जी सरिता जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत मजा आया। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच। ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।